Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about various terminology about the labor, because अब हमारा जो next lecture आने वाला next lecture that is about the labor. So before study the labor you have to understand some terminology, that is like lie, presentation, presenting part, attitude, position, very important. ठीक है, because directly यहाँ से भी MCQ आता है. So the first terminology that is the lie. So lie का मतलब क्या होता है? Lie का मतलब है, lie मतलब there is a relationship between the long axis of fetus and the long axis of mother's uterus. See, this is the mother's uterus, right? And this is the fetus. fetus का long axis. So this is the fetus long axis and this is the uterus long axis. So यहाँ पे fetus कैसा है? Fetus is longitudinally, है ना? So uterus भी क्या है? सीधा है, and fetus is also in the same parallel direction. So if the fetus is in the same parallel direction to this uterus, then it is known as longitudinal lie or vertex presentation, है ना? So vertex lie और longitudinal lie. सेकेंड हमारा है ट्रांसवर्स लाई. सो देखो, दिस इज आर यूटरस, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, एंड दिस इज द फीटस. सो अगर हम यूटरस देखें एंड अगर हम फीटस देखें, सो फीटस कैसा है? फीटस इज ट्रांसवर्सली, सो दैट्स व्हाई इट इज द ट्रांसवर्स लाई. इफ इन दिस सिचुएशन यहाँ पे क्या है? यूटरस हमारा ये हमारा यूटरस का लॉन्ग एक्सिस हो गया, एंड दिस इज आर फीटस. ये कैसे प्लेस है? ऑब्लिक में प्लेस है, सो दैट्स व्हाई इट इज द ऑब्लिक लाई. सो हमारे पास 3 लाइज हो गए, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लाई हो सकता है, या फिर ट्रांसवर्स लाई हो सकता है, या फिर ऑब्लिक लाई हो सकता है. ठीक है ना? सो वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि इन लॉन्गिट्यूडनल लाई में वजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की क्या है. हम अभी प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाई की बात कर रहे हैं. सो इन लॉन्गिट्यूडनल लाई में vaginal delivery is possible, but in case of oblique lie and in case of transverse lie, the mode of delivery is always cesarean section. ठीक है ना? Second thing is that about the unstable lie. So unstable lie क्या होता है? Unstable means the lie is unstable, कुछ भी definite नहीं हो रहा है. So when the lie of the fetus is not fixed by 37 week. So देखो, before 37 week क्या होता है कि बेबी कभी longitudinal होता है, कभी oblique होगा, कभी transverse होगा, and that is normal. But 37 week तक अगर ये fix नहीं होता है, during labor तक ये fix नहीं होता है, then it is known as unstable lie. And unstable lie का जो cause होता है, that is idiopathic. Most common is idiopathic. There is no any cause, there is no any reason. बट अनदर कॉज है लाइक प्लेसेंटा प्रेविया, पॉलीहाइड्रामिनोज, वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीहाइड्रामिनोज में बेसिकली देखने को मिलता है एबनॉर्मल शेप ऑफ यूट्रस. सो इसका मैनेजमेंट भी क्या है? दैट इज द सिजेरियन सेक्शन. वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज इन ट्रांसवर्स लाई मैक्सिमम चांस ऑफ कोड प्रोलैप्स कहाँ पे होता है? इन द ट्रांसवर्स लाई. तो जब मैंने आपको कोड प्रोलैप्स पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था. ठीक है ना? सो दैट इज अबाउट लाई. First definition, that is the relationship between the long axis of the fetus and the uterus. So that is the lie. Coming to the second point, that is the presentation. So presentation का मतलब ही क्या होता है? कौन पहले आया, है ना? हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. So who present first? So that is the presentation. So that is the part of the fetus that occupies lower pole of uterus and enter the pelvic inlet first. That is the presentation. ठीक है ना? So let's suppose baby, यहाँ पे baby है, this is the baby. ठीक है ना? In longitudinal lie और vertex lie में कौन सा part of the baby का कौन सा part lower pole of uterus में first occupy कर रहा है, या फिर pelvic inlet में सबसे first आया? कौन सा part आया? That is our cephalic part, head part आया है. लेट सपोज अगर बेबी ऑपोजिट है, लेट सपोज बेबी का जो लेग है वो नीचे है, इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट पहले बेबी का आएगा? दैट इज फुट पहले आएगा, है ना? सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो सकता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन, एंड इट इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन. नॉर्मल प्रेजेंटेशन एंड वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल. ठीक है ना? सो नॉर्मल प्रेजेंटेशन इज द सिफेलिक प्रेजेंटेशन.
अदर देन दैट क्या हो सकता है, ब्रीच। ब्रीच कब बोलेंगे, जब हेड की जगह बेबी का लेग नीचे आएगा, फुट नीचे आएगा, तो उसको हम बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। एंड थर्ड हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकता है, दैट इज द शोल्डर प्रेजेंटेशन। सो इन केस ऑफ दिस ट्रांसवर्स लाई, कौन सा पार्ट इन लोअर पोल ऑफ यूट्रस को ऑक्यूपाइज करेगा फर्स्ट, दैट इज द शोल्डर ऑफ द बेबी, ऑफ कोर्स, तो दैट इज द शोल्डर प्रेजेंटेशन। आई बस समझ में। सो presentation either presentation will be either cephalic, breech or shoulder, but most common malpresentation is breech and most common presentation basically 90% presentation कौन सा होता है, cephalic होता है, and it is normal, ठीक है। sometimes there is compound presentation. so compound presentation का मतलब क्या होता है, as the name suggests compound, so मतलब कि when two part of baby occupy lower part of uterus, then it is known as compound presentation, like cephalic plus leg. तो बेबी का सर भी है lower pole of uterus पे और leg भी है, so that is the compound presentation. So till now we have discussed about the lie, the second thing is the presentation, and third is the presenting part. So प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, सो प्रेजेंटेशन मतलब कि लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे कौन सा पार्ट पहले ऑक्यूपाइज किया। प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब है कि पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच लाइज डायरेक्टली ओवर द इंटरनल ओस, सो इट मींस समथिंग स्पेसिफिक पार्ट है ना। सो पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन which lies directly over the internal os, or you can say that exact part felt on pervaginal examination. So when you do the PV, when you do the pervaginal examination, the exact part that you are feeling, that is the presenting part, ठीक है ना। like vertex presentation is the most common presentation, vertex और cephalic presentation है ना। in that baby हो सकता है fully flexed और partially flexed और deflexed। तो फुल्ली फ्लेक्स में आप क्या फील कर रहे हो, पार्शियली फ्लेक्स और डिफ्लेक्स में, ठीक है ना। इन पार्शियल एक्सटेंशन में आपको क्या होगा, ब्रो होगा, है ना। ब्रो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। कंप्लीट एक्सटेंशन में क्या होगा, फेस हमारा होगा, है ना। सो दिस इज द ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज द फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। दिस इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स में भी डिपेंड करता है कि बेबी फुल्ली फ्लेक्स्ड है। सो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पार्ट कब कब हो सकता है, इन इफ द बेबी इज फुल्ली फ्लेक्स्ड और पार्शियली फ्लेक्स्ड और डीफ्लेक्स। इन पार्शियल एक्सटेंशन में कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है, ब्रो हो सकता है। कंप्लीट एक्सटेंशन में क्या हो सकता है, फेस हमारा हो सकता है ना। सो वर्टेक्स बेबी का कब फील होगा, इन फुल्ली फ्लेक्स, पार्शियली फ्लेक्स और डीफ्लेक्स कंडीशन में। पार्शियल एक्सटेंशन अगर बेबी होगा लाइक दैट, देन आपको कौन सा पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, दैट इज द प्रो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। इन कंप्लीट एक्सटेंशन में कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, है ना। बट प्रेजेंटेशन यहाँ तीनों पे क्या है, दैट इज सिफेलिक ही है। तीनों प्रेजेंटेशन क्या है, तीनों के तीनों में प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, हेड ही बाहर आ रहा है ना। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट इज समथिंग द डेफिनेट पार्ट, द एग्जैक्ट पार्ट दैट इज कमिंग आउट, है ना। सो दैट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। So till now we have discussed about the lie, the presentation, the presenting part. Very very important, the difference between the presentation and the presenting part. ठीक है ना। Coming to the fourth one, that is attitude. So attitude का मतलब है कि relationship किसका, relationship of fetal body part to one another. So fetal body part मतलब head, trunk, limb, है ना। So relationship of head, trunk and limb to one another. Like most common attitude क्या होता है, that is the flexion, complete flexion. Everything is flex, head flex, limbs flex, leg flex. So that is the complete flexion is the most common attitude. So most common attitude is the complete flexion and it is favorable. That is favorable for the vaginal delivery, ठीक है ना। एंड एबनॉर्मल एटीट्यूड क्या हो सकता है, पार्शियल एक्सटेंशन। दिस इज योर पार्शियल एक्सटेंशन, जहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या आ रहा है, ब्रो आ रहा है। हमने सब पढ़ा था कि सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होगा एंड वजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। सो इट इज द एबनॉर्मल एटीट्यूड। या फिर फेस प्रेजेंटेशन, इन केस ऑफ कंप्लीट एक्सटेंशन क्या होगा, फेस प्रेजेंटेशन होगा।
सो मोस्ट कॉमन और फेवरेबल और नॉर्मल एटीट्यूड इज कंप्लीट फ्लेक्शन, एबनॉर्मल में हमारा हो सकता है पार्शियल एक्सटेंशन और कंप्लीट एक्सटेंशन। ठीक है, सो आई थिंक एटीट्यूड आपको समझ में आ गया। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर का मतलब है कि फिक्स्ड बोनी पॉइंट्स, है ना। सो fixed bony point on presenting part used to describe the fetal position in relation to the maternal pelvis। सिंपल बोले तो इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बेबी का ये वर्टेक्स बाहर आ रहा है, सो हमने देखा दिस इज द वर्टेक्स, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, दैट इज द वर्टेक्स। लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई है, प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, वर्टेक्स है, और एटीट्यूड क्या है, कंप्लीट फ्लेक्शन है। और डिनोमिनेटर क्या है, व्हेन यू डू द पीवी एग्जामिनेशन डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर इज ऑक्सीपुट, बेबी का ऑक्सीपुट आप फील करोगे। इन केस ऑफ फेस प्रेजेंटेशन, इन दैट केस कौन सा बोनी प्रोमिनेंट है, दैट इज द मेंटम। इन केस ऑफ ब्रो प्रेजेंटेशन कौन सा बोनी पार्ट आप फील करोगे, दैट इज द फ्रंटल बोन। इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन कौन सा बोनी प्रोमिनेंट होगा, दैट इज द सैक्रम, दिस इज द सैक्रम। ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, एक्रोमियन प्रोसेस। तो सिंपल बोले तो डिनोमिनेटर का मतलब है कि द फिक्स्ड बोनी पॉइंट, सो बोनी पॉइंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट, सो दैट इज द डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको यहाँ पे हर चीज बता दिया, लाई इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सेकेंड इज द प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, presenting part is vertex, attitude is complete flexion and denominator is occiput। ठीक है, आई थिंक आपको ये 5 पॉइंट समझ में आया होगा। देन कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, आपको ये इमेज दे देंगे एग्जाम में, ये ऐसे पेल्विस होगा, ये एक बेबी बना होगा, एंड दे विल आस्क द पोजीशन ऑफ दैट बेबी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पेल्विस। तो ये आपको बेसिकली आना चाहिए। सो पोजीशन क्या है, पोजीशन इज रिलेशनशिप ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट टू क्वाड्रेंट्स ऑफ मैटरनल पेल्विस। सो डिनोमिनेटर बेसिकली क्या था, फिक्स्ड बोनी पॉइंट, है ना। सो अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है तो वहां पे बोनी पॉइंट क्या था, दैट इज आर ऑक्सीपुट। सो दिस ऑक्सीपुट का रिलेशन मैटरनल पेल्विस से क्या है, सो दैट इज द पोजीशन। ठीक है, so basically we have 8 position in cephalic presentation। so ये let's suppose ये हमारा pelvis बना हुआ है, यहाँ पे मैं एक pelvis बना देती हूँ, this is our pelvis, right, this is our pelvis। so सबसे पहले हम पोजीशन हम समझते हैं, हमारे पास टोटल 8 पोजीशन है। so फर्स्ट हमारा राइट, ये हमारा दिस इज, देखो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो मदर में ये हमारा राइट है, तो मदर में ये वाला साइड कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। सो दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ठीक है ना। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपके जो राइट साइड पे है मदर में, वो कौन सा साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो दिस इज आवर लेफ्ट साइड एंड दिस इज आवर राइट साइड। सो ये अगर दिस इज द पेल्विस, राइट। सो कैसे हमें पोजीशन आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीपुट सबसे पहले देखना है। इफ ऑक्सीपुट इज फेसिंग टुवर्ड्स प्यूबिस सिम्फाइसिस, सो दिस इज द प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड दिस इज द सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सो ये हमारा प्यूबिस सिम्फाइसिस है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो दिस इज द प्यूबिस सिम्फाइसिस, दिस इज द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। ठीक है, सो और सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑक्सीपुट। So occiput is facing towards pubis symphysis. This is the pubis symphysis and this is the occiput. So if the occiput is facing towards the pubis symphysis, then हमारा कौन सा पोजीशन होगा, occipito anterior, occipito anterior। ठीक है। if the अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। if the occiput is facing towards the sacral promontory, then होगा occiput posterior। and अगर ये midway between the sacral promontory and pubis symphysis होगा तो ये occiput transverse होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप है कि इफ इमेज ऑफ ऑक्सीपिट इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, इन मदर ये राइट साइड होगा। सो ये हमारा ऑक्सीपुट है, ये बेबी का ऑक्सीपुट है, ये हमारे कौन सा साइड हो रहा है, दिस इज हमारे राइट साइड है,
बट मर्दन में कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक। प्लस ये ऑक्सीपुट किधर फेस कर रहा है, ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये हमारा सैक्रल प्रोमोनटरी है, इट इज इन बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड सैक्रल प्रोमोनटरी, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, एंड ये लेफ्ट साइड है तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, दैट इज लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड वन, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस and this is the left side and it is facing towards the pubis symphysis, so it is the left occiput anterior and it is direct occiput anterior, ठीक है ना। एंड ये हमारा राइट साइड हो गया, सो दैट इज द राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, दिस इज राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, एंड ये टुवर्ड्स किसके साथ पास है, टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोनटरी, सो इट इज राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, दिस इज डायरेक्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर एंड दिस इज द लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, डिफरेंट 8 डिफरेंट पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखो, दिस इज द पेल्विस, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, एंड ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये हमारा सैक्रल प्रोमोनटरी है, ठीक है ना। सो ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, एंटीरियरली क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, so it is towards the pubis symphysis, so that is the occiput anterior, and कौन से साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट occiput anterior, it is in between the sacral promontory and pubis symphysis, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट occiput transverse, ठीक है ना। सो प्लीज इस तरीके का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ये ऐसे इमेज दे देगा, ऐसे आपको ऐसे पेल्विक बना होगा एंड ये इमेज होगा एंड दे विल आस्क कि ये कौन सा पोजीशन है। सो सिंपली आपको देखना है, दिस इज द सैक्रल प्रोमोनटरी, दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, एंड लेफ्ट साइड है तो ये कौन सा है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो जाएगा क्योंकि टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोनटरी है, एंड दिस इज द लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ठीक है, सिंपली, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कब बोलेंगे, इफ द पोजीशन इज फ्रॉम 1 to 5। सो अगर 1 to 5 अगर पोजीशन है, फ्रॉम लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स टू राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स के बीच में अगर पोजीशन है, देन वेजाइनल डिलीवरी होगा। ओके, सो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी सेड इफ पोजीशन ऑफ फीटस इज फ्रॉम 1 to 5, एंड अगर फ्रॉम 6 to 8 है, that is occiput posterior position, it is called mal position, ठीक है ना। so from 6 to 8, that is from right occiput posterior to left occiput posterior, it is known as mal position, ठीक है ना, mal position और occiput posterior position। so most common अगर position आपके एग्जाम में आता है कि which one is the most common, so most common हमेशा कौन सा होता है, most normal चीजें होती है, एंड मोस्ट नॉर्मल क्या है, मोस्ट नॉर्मल हमारा है लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। सो मोस्ट कॉमन पोजीशन ड्यूरिंग लेबर है ना, सो दैट इज ऑलवेज द आंसर इज लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। सो मोस्ट कॉमन पोजीशन इज लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स एंड सेकंड मोस्ट कॉमन इज लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। तो जैसे जैसे ये जाओगे ये डिक्रीज होता रहेगा। सबसे मोस्ट कॉमन है लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, देन लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर एंड देन लेफ्ट, ठीक है। सो most common position is left occiput transverse, second most common position is left occiput anterior, and most common occiput posterior position is that is right occiput posterior, ठीक है, and most common occiput anterior position is that is left occiput anterior, क्योंकि anteriorly में कौन सा है, that is ये वाला है, ठीक है ना, इसलिए। so most common position in normal vaginal delivery is left occiput transverse, again the same questions, most common position in breech presentation is left sacrum anterior, and most common position in face presentation is left mentum mento anterior। so ये आपको कुछ important points पता होना चाहिए, ठीक है। so I think ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। that is our various terminology, very very important, the lie, the presentation, the presenting part, the attitude, denominator and the position। so that's all about today. Thank you so much, all the best.